ਉਹ ਬੀਜ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋੜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰ ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ, ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਚਮੜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਖੋਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖੋਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਦਾ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਨੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਹੀ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਕੋਈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਖੋਲ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮੇ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪ, ਜਪ ਮਨ ਰਾਮੈ ਨਾਮ, ਹਰ ਜਸ ਊਤਮ ਕਾਮ। ਹੈ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਜੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਮਨ ਨੇ ਖੋਜਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੈ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਮੂਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਪ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੈ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ ਵੱਲ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਵੱਲ ਉਤਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਟਨ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੈਂਪ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੂਏਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਪ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਲੈਂਪ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਤੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿ ਉਸ ਲੈਂਪ ਦੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੋਤ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਿਮਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋਤ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਦੀ ਪਰਤ ਜੰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਹੋਣ ਦਾ? ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲ ਦੀ ਪਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, 5 ਮੀਲ, 10 ਮੀਲ, 100 ਮੀਲ, 1000 ਮੀਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧੂੜ ਕਣ ਇਹਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੋ ਕਾਲਖ, ਜੋ ਧੂੜ ਕਣ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਬਸਤਰ ਮੈਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਪੜਾਅ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਧੋ ਲਵੇ। ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਈਆਂ ਤਰਬਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆ ਤਰਵਿਆ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬੇਹੀ ਤੇਰੇ ਬੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਹੀ ਤਰਬੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਚਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਲੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 10 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ 60,000 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਸਤਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ,
कदी कपड़ियां बारे, कदी भोजन बारे, जो भी सोचता है, जिन्ने विचार आउंदे ने, एक दिन विच औसतन 60,000 विचार मन उपर प्रगट हुंदे ने। ते संस्कार एक दिन विच बुद्धि दे उपर 10 लाख के करीब संस्कार इकट्ठे होंदे ने। और याद रखियो, मन ते बुद्धि च फर्क है। मन एक अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन का काम ही विचार करना है, विचारों का नाम ही मन है। जो मनुख सोचता है वो विचार ने, ते संस्कार की है, वो बुद्धि ते पैंदे ने। पता ही नहीं चलता मनुख नूं, पै रहे ने, लगातार पै रहे ने। उठिया, उठन का संस्कार बुद्धि ते पै गया। सामने दीवार नूं देखिया, दीवार छप गई बुद्धि के उपर। उस दीवार के उपर कोई मक्खी बैठी सी, उन्होंने देख लिया, वह भी संस्कार पैदा हो गया। बाहरों पंछी ने आवाज दी, वह भी बुद्धि के उपर छप गया। कोलों ट्रेन लंघी, कार लंघी, वह संस्कार छप गया बुद्धि ते। कार ने हॉर्न दिता, हॉर्न का संस्कार छप गया। लेट गया, लेटन का संस्कार। करवट लई, करवट का संस्कार। उठ बैठा, उठ के बैठन का संस्कार। किसी बच्चे ने आवाज दी, वो संस्कार। कीड़ी ने पैर के उपर छोटी जी दंदी लगा दी, तो वह संस्कार पै गया। छोटे छोटे संस्कार। इशनान करन लगे, बाल्टी चुक के रखी, वह संस्कार। पानी एक मग पिंडे ते पाया, पानी कोसा है, ठंडा है, गर्म है, वह संस्कार। मग नूं चक के सज्जे पासे रखिया, वह संस्कार छप गया कि सज्जे पासे रखिया। छोटी छोटी गल इस बुद्धि के उपर छपदी चली जाती है। 10 लाख के करीब एक दिन में संस्कार बुद्धि के उपर इकट्ठे हो रहे हैं। 7 अरब के करीब, 7 करोड़ के करीब सैल ने मनुखी दिमाग विच, ते एक एक सैल अरबां सूचनावां इकट्ठियां कर सकता है। 7 करोड़ सैल इस शरीर के विज्ञानियों ने मन्ने ने, मेडिकल साइंस के मुताबिक, कि 7 करोड़ इस दिमाग विच सैल ने, और एक एक सैल अरबां सूचनावां इकट्ठियां कर सकता है। भाविक मनुखी दिमाग विच इन्नी ताकत, इन्नी समर्था है, जे वो चाहे तो सारी धरती दियां, सारियां लाइब्रेरी दियां, सारियां ही किताबां नूं उस जुबानी याद कर सकता है। यह गल वखरी कि मनुख उन्हां 7 करोड़ सैलां की वरतों ही नहीं करता। किसी किसी सैल ते चोट वजदी है, वह जागदा है, तो वह कारज हो रहे, बाकी सैल सुत्ते ही चले जाते हैं दुनिया तो। जिस तरह आए उस तरह ही चले जाते हैं, वरतों ही नहीं होंदी। जिस अंग की वरतों होवे वो अंग चल पैंदा है, जिहड़ी अंग की वरतों कोई बंद कर दिंदा है, वो अंग घटदियां घटदियां उहदी समर्था खत्म हो जाती है। इस करके बुढ़ापे विच याददाश्त घटनी ये कोई मनुख का बहुत बड़ा भरम है। अल्जाइमर रोग है जिहदे नाल याददाश्त घटदी है, वो किसी बच्चे नूं भी हो सकता है, पर कोई मन विच भरम पाल लवे कि जो उम्र वधदी है तो याददाश्त घट जाती है, ये सिर्फ मन का वहम है, उस तो ज्यादा नहीं। कोई उन्होंने वरतदा रहे तो चलती रहेगी, वरतना बंद कर देगा तो यह बुद्धि खत्म हो जाएगी। इनू वरतना ही याददाश्त वधाउण दा सब तो अच्छा दुनिया विच कटौनक है, इको एक कटौनक है। बहुत सारे गुरमुख प्यारे मिलते हैं, खासकर बुजुर्ग मतावां मिलदियां ने कि असी बाणी याद करदे हां, याद हुंदी नहीं जी। 40 साल तो जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, जपजी साहब नहीं याद हुंदा। 40 साल तो जाप साहब का पाठ कर रहे हैं, जाप साहब याद नहीं हुंदा। सवाल करते हैं कि मैं याद करिए बाणी, बाणी नहीं याद हुंदी। कैनेडा दे विच एक माता मिली सी, कोर्स करा रहा सा सिख जीवन जाच, और बड़ी संगत बैठी हुई, रोजाना का कोर्स सी। ਉਹਦੇ एक माता ने खलो के सवाल किया, कहने लगी मैं तो 40 सालों तो कोशिश कर रही हाँ, मैनू जाप साहब कंठ नहीं होता, मेरी याददाश्त घट गई है, खत्म हो गई है। मैं उस माता को सवाल किया, माता जी तुहाडे धीआं पुत्र किन्ने ने? कहने लगी इन्ने। उन्होंने नाम, उन्हें नाम दस दिते। उन्होंने विआह हो गए, हाँ जी। पोते पोतरियां, दोते दोतियां किन्ने ने? इन्ने पोते, इन्ने पोतियां, इन्ने दोते, इन्ने दोतियां। नाम उन्होंने सारे दे नाम दसे। होर पुछया तुहाडी ननाणा, जेठ, देवर इत्यादि, उन्होंने नाम दसे। कित्थे रहंदे हो? घर दा एड्रैस दसिया, फलानी थां ते। शुरू तो रहंदे हो? नहीं, पहला फलानी थां ते घर सी, वो भी एड्रैस दस दिता।
ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਰੁਚੀ, ਇੰਟਰਸਟ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਖਦਾ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਗੱਲ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, ਔਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਕ ਮੈਨੇ ਇੱਕ, ਅਰਜ਼ ਮੈਨੇ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਫਤਮ ਗੁਫਤਮ ਮੈਨੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, ਪੇਸ਼ ਮੈਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਤੇਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ, हे ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਸ 2-4 ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਯਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਯਕ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਓਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਕ 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 ਯਕ, ਓਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛਾਪ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਛਾਪਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲਵਲੀ ਸਵੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 60 ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਗੀ ਤੇ 60 ਵਾਰ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ 100 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਪਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਭਾਰਤ ਦੇ
किन्नी किन्नी उम्र हो जाती है, चलाई चले जाते हैं, मरण तक भी वो गद्दी नहीं छड्डदे। और अनेकां देश ऐसे ने, बुजुर्ग पूरा देश चला रहे ने, किन्नी याददाश्त होएगी उन्होंने। जे वधदी उम्र दे नाल याददाश्त दा संबंध हुंदा ते वड्डी उम्र दे लोगां नूं देश की जिम्मेवारी कदी सौंपी ना जाती, बल्कि वो बुजुर्ग ज्यादा चलाक हुंदे ने, ज्यादा उन्हां दी बुद्धि काम करदी है, वो ज्यादा कनिंग, ज्यादा चलाक ते ज्यादा लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। इन्ने सियाणे हुंदे ने। वो वधदी उम्र नहीं, गल रुचि दी है। जदों बाणी विच रुचि पैदा होएगी, बाणी याद हो जाएगी। की हुंदा है, सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक, रात सुते सुत्तियां करवट भी लई, वो भी बुद्धि ते छाप पैदा हो गई। सराणा सिर दे थल्ले आया, वो भी छाप, सराणा सिर तो परे होया, वो भी छाप बन गई, बुद्धि उपर वो भी चीज छप गई। निक्की निक्की चीज, रात लाइट गई, रात लाइट आई, पखा चलिया, बंद होया, किसी ने आवाज दी, छोटी छोटी छाप। 10 लाख संस्कार जिहड़े ने एक दिन विच बुद्धि दे उपर पै जांदे ने। हुण की मैल ही ते है, धूड़ मिट्टी ते जम रही है। मन दे 60,000 विचार की ने, वो मैल मिट्टी ही ते ने। ते मन ज्यों सफर करदा है, बुद्धि ज्यों सफर करदी है, सवेर तो लैके शाम तक लम्मा सफर, शाम तो लैके सवेर तक सुपनियां दे विच भी सफर चल रहा है। बुद्धि काम करी जा रही है, बुद्धि नहीं रुकदी हुंदी, सुपने विच भी काम कर रही है। कोई ना कोई चित्र बना रही है, कोई ना कोई आवाज पैदा कर रही है, सुपना चल रहा है। तुसी सो जाते हो पर बुद्धि नहीं सोंदी। जे कोई तुहाडा नाम लैके आवाज देवे, तुसी झट उठ खड़े हो जाते हो। किन्ने उठाया तुहानू? तुसीं ते सुते सी। हाँ, बुद्धि जागदी है। बुद्धि ने सुनिया तुहाडा नाम, उन्हें कहा भी ये इस बंदे का नाम है, इनू कोई बुला रहा है। बुद्धि ने इशारा किया, हिलूणिया, जगा दिता तुहानू। ते जे तुहाडे नेड़े कोई होर सुता होवे, कोई उन्होंने आके आवाज देवे, तुहानू नहीं सवेरे पता लगता कि मेरे को उठा के गया, लैके गया कोई, क्योंकि बुद्धि ने कहा नहीं, ये नाम नहीं है, इनू सौण दिओ। बुद्धि जाग रही है। जदों सवेरे उठ के तुसीं कहने हो अज नींद बहुत वधिया आई, इस गल का किनू पता है? तुसीं ते सुते हुए सी, पर कोई तो जानता है ना भी नींद बहुत सोहनी आई। किसी नूं ते पता है ना, बस वो बुद्धि नूं पता है, वो हमेशा जागदी है। 10 लाख विचार बुद्धि के उपर रोज पै जाते हैं, और मन का सफर 60,000 विचार रोजाना ये चल रहे हैं। तो जिन्ने जेड़े जेड़े विचार चलते हैं, मैल इकट्ठी होती जाती है। दुनिया की निंदिया, चुगली, उस्तत, संसार के भोजन पदार्थ, संसार दीयां चीज़ां, अखां दे राही, कन्नां दे राही, जेड़े जेड़े मन च आले दुआले दीयां आवाज़ां सुनियां, विचार पैदा होंदे गए, मन उपर मैल जमदी गई। सफर लम्मा है। इसे नूं कह दिता, जन्म जन्म की इस मन को मन लागी, काला हुआ स्या। अज का सफर नहीं, जन्मां जन्मांतरां दा मन का सफर है। मन काला स्या हो चुकी है। पता नहीं किन्नियां को समयां दी मैल इस मन के उपर जमदी चली गई। चिमनी काली हो गई। जदों अपने मन वाल झाती मार के देखी, पापां विकारां दी कालख नजर आई। भला मन भी रब दी जोत हो सकता है? हाँ, मन ते जोत ही सी ओदी। चिमनी बाहरों काली सी, जदों बाहरों विचारां दी मैल कोई हटा देगा, अंदर ते जोत जग ही रही है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मान। रब ते तेरे नाल ही है, बल्कि हे मन तू ही मूल है, तू ही रब दा रूप है, तू ही त्यो तत् है। एका जोत, जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, तू ही त्यो जोत है। इस करके रब दी खोज रब होण दी खोज है, रब वर्गे होण दी खोज है। ते ओदे लई विकारां दी मैल हटानी पैंदी है। असी दुनिया च उन्होंने सियाणा मनते हैं जिहदे कोल बड़ी इनफॉर्मेशन होवे, बड़ी नॉलेज होवे। असी कहने बड़ा सियाणा है, और जिहड़ा नुक्स कढ़ सकदा होवे वो सब तो बड़ा सियाणा है। 10 डॉक्टरां दे कोल गया, 9 डॉक्टरां नूं पता ही नहीं लग्या मैनूं की रोग। 10वें ने डायग्नोस किया, 10वें ने
मेरी जांच पड़ताल की शरीर की, उन्हें कह दिता तेनों ये रोग है। बड़ा सियाना डॉक्टर है, उन्हें रोग फड़िया ना, नुक्स लभ्या उन्हें। मेरी गड्डी खराब हो गई, 10 मकैनिकों को लेके गया, 9 मकैनिकों को पता ही नहीं लग्या की फॉल्ट सी। 10वें ने बोनट ते हाथ रख के दस दिता भी इत्थे नुक्स है। उन्हें बोनट भी नहीं खोलिया, आवाज सुन के दस दिता गड्डी दी। बड़ा सियाने, सियाना वो जिहदे कोल दुनिया भर की नॉलेज इनफॉर्मेशन होवे, जिहड़ा नुक्स कढ़ सकदा होवे, किसी दा फॉल्ट दस सकदा होवे। असीं कहने आ सियाणे, इहनूं जाके पता करो। जे धी पुत्तर दा रिश्ता देखना है फलाने घर विच, आंढ गुआंढ तो पुछ लो, सियाणे लोग हुंदे ने, नुक्स दस दिंदे ने। असीं नूं सियाणा मंनदे आ। मनुख अपने आप को सियाणा तो कह नहीं पाता, हंकार नूं सट वजदी है। फिर लोग रल के एक पैमाना कढ़ लेंदे ने, चलो उन्होंने सियाणा मन्नांगे जिहदे कोल सब तो ज्यादा नॉलेज होएगी, सब तो वध ज्ञान होएगा, ते जिहड़ा नुक्स कढ़ सकदा होएगा। असीं कहांगे ओ सियाणा मकैनिक, ओ सियाणा डॉक्टर, ओ सियाणा इंजीनियर, ओ सियाणा टीचर। पर भगत फरीद जी ने बचन किया, कहने लगे सियाणा वो नहीं जिहड़ा दुनिया की जानकारी रखता है। मैं अपने घर विच बैठा होया, हुण बड़ी बड़ी कोठी है, हवेली है, लग्जरी है, मेरे आले दुआले सोफे ने, सोफे के उपर बैठा होया, वड्डा सारा टीवी लग्या होया, फ्रिज है, एसी है। भला इन्हां लग्जरी चीज़ों दे विच मैं की कर रहा, मेरा की मनोरथ है इत्थे, मैं क्यों बैठा होया इत्थे? मेरे आले दुआले सुखां दे 1000 साधन ने, वड्डियां गड्डियां ने, भला इन्हां सुखां साधनां विच मैं बैठा की कर रहा? भगत फरीद कहने लगे सियाणा वो नहीं जिहड़ा चीज़ां दी इन्फॉर्मेशन जानदा है, आ सोफा है, गड्डी है, एसी है, टीवी। सियाणा वो है जिहड़ा अपने बारे जानदा है, मैं कौन हां। दुनिया की जानकारी रखने वाला सियाणा नहीं, जिन्हों यही नहीं पता मैं कौन हां, दुनिया की जानकारी रख के की करेगा। असली सियाणा तो वही होया ना जिन्हों ये पता है मैं कौन हां। दूजे की खोज तो बाद चो करांगा, मैं दूजे की जानकारी बाद च लवांगा, पहला अपनी तो जानकारी ले लवां कि मैं कौन हां। सियाणा वो नहीं जिहड़ा दूजियां की जानकारी इकट्ठी करी जांदा है, अपने बारे पता ही ना होवे, होश ही ना होवे मैं कौन हां। भला सियाणा ते वो है जिहड़ा अपनी जानकारी रखदा है, मैं कौन हां। सियाणा वो नहीं जिहड़ा दूजे दे नुक्स कढ़ सकदा है ते दूजे दे नुक्स कढ़ के अपने काले लेख लिखी जाए, ये फलाना इदां दा, ये फलाना इदां दा। असली सियाणा वो है जिहड़ा अपने अंदर झाती मार के अपने नुक्स कढ़ सके, जिहड़ा अपनी कालख नूं, अपनी मैल नूं साफ करे ताकि जोत प्रगट हो जाए। फरीदा जे तू अकल लतीफ, लतीफ मैंने बरीक अकल, बरीक अकल वाला, जे तू तिखी बुद्धि वाला है, जे तू अपने आप को बड़ा चलाक, बड़ा सियाणा समझदा है, फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लेख ना लेख। फिर दूजियां दे अवगुण देख देख के उन्हां दे काले लेख ना लिखी जाई, फलाना आदमी ते इदां दा है, फलाना इदां दा है। दूजियां दी जानकारी लैके दूजियां दे नुक्स कड्ढी जाए, फिर तू अकल लतीफ नहीं है, फिर तू सियाणा नहीं है। तू सियाणा तां है फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख, अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। तू अपने गिरेबान में झाती मार के देख, तू कौन है ते तेरे किहड़े किहड़े नुक्स ने। अपने अंदर झाती मार, अपनड़े गिरीवान में सिर नीवा कर देख। जिदन अपने अंदर झाती मारेगा मैं कौन हां, उस दिन सियाणा हो जाएगा, उस दिन ज्ञानवान हो जाएगा। मैं कौन हां तेनू ज्ञान हो जाएगा, मूल की पछाण हो जाएगी। उस दिन सियाणा होएगा जिस दिन अपने नुक्स लभ लेगा कि अंदर की चिमनी ते काली हो गई है, मैं इनू धो मांज के साफ कर देवां ताकि मन की जोत लिशक जाए। सहसे जियो मलीड़ है, अंदर सहम डर शंकियां दे नाल जियो मैला हो चुकी है, अंदर की चिमनी मैली हो गई है। कित संजम धोता जाए, मैनू किवें धो के साफ करां, क्यों ना गुरु दे शब्द नूं अंदर लै जावां। शब्द ओ अमृत है, ओ तीर्थ है जिहड़ा मेरे आपे नूं धो के साफ कर दिंदा है। सहसे जियो मलीन है, कि संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो, हर सिर रोह चित लाए। मन नूं शब्द दे नाल धो लई,
तेरा मन स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये नाम है भरिए मत पापां के संग, ओ धुपै नामे के रंग। इस मैली पापां भरी मत नूं नाम धो के साफ कर दे। बाहर दे तीर्थ ते तेरे शरीर दी मैल उतार सकते ने, बाहर दा पानी अंदर तक नहीं पहुंचता। नाम अमृत तक पहुंचदा है, वो अंदर दी मैल नूं धो दिंदा है। आ तैनूं तीर्थ दसां किहड़ा है। तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पुरब सदा दसाहरा। होना महर का सदा जाचों, देहो प्रभ धरणी धरा। संसार दा रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीर्थ मजना। गुरु दा वाक, गुरु दा शब्द सच्चा तीर्थ है। यह है अंतरगत तीर्थ मल नाओ। अपने अंदर दे तीर्थ ते इशनान कर ले। जिस दिन ये मन की चिमनी साफ हो जाएगी, उस दिन ये मन नजर आ जाएगा। ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो। ये मन ले जो उन्होंने रहे तो 3 लोग प्रतीक है। जो निज विच टिक जाएगा कि ये निज ही प्रभु का रूप है। अंदर आत्म टिक जाना ही प्रभु का रूप है। पटने की धरती जो गुरु नानक पातशाह पहुंचे, एक रुख के थले जाके बह गए। एक छोटा जा बच्चा, उन्हें देखा फकीर आया है। उन्हें गुरु नानक पातशाह के चरणों के विच दुध लिया के रखिया। सतगुरु जी ने मत्था टेकिया, सतगुरु की असीस लई। सतगुरु ने गुरमति ज्ञान दिता, उन्होंने निज आत्म टिकाया। जिस दिन गुरु नानक साहब नाल मिलाप होया, अगले दिन वो लड़का छोटा जा बच्चा नौकर सी सालसराय जोरी दा, अगले दिन मुंह नेरे उठ के बह गया। इशनान किया, चौंकड़ा मार के निज च टिक गया। अंतर दी खोज शुरू हो गई, निज दी मन दी खोज शुरू हो गई। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। यह जो दुनिया सेहर मिला दस्तगिरी ना। सालसराय जोरी, उन्हें देखिया चंचल बिरती वाला मेरा नौकर, अदरकार नौकर सी ना होगा, जिहड़ा सूरज नाल जिद के सोंदा हुंदा सी कि सूरज पहला डुबिया मैं बाद च सुता, इस करके पहला सूरज निकलेगा मैं फिर उठांगा। धुप चढ़े उठन वाला, चंचल बिरती वाला टिकदा नहीं सी। दौड़ भज संसार दी दौड़ सी। सचमुच जिन्हें बाहर का संसार देखिया, वह बाहर ही दौड़दा है। पर जिहड़ा अंदर का संसार एक बार देख लैंदा है, उहदियां बाहर दीयां दौड़ां मुक जांदियां ने। एडा खूबसूरत है वह संसार। बाहर चंचल बिरती वाला दौड़दा सी, बाहर दीयां गल्लां, बाहर दे पदार्थ, बाहर दीयां चीजां, बड़ा मोह सी। ये चंचल बिरती वाला बड़ा टिक के बैठा हुआ है, ऐन ऐहल, पता नहीं की कर रहे है। सूरज नाल जिद के उठन वाला मुंह नेरे उठ के बैठा होया, तैयार होके नहा धो के चौंकड़ा मार के बैठा है। की कर रहे है? इन्ना स्थिर हो गया। सचमुच जो सोना मैला होवे, सोने च अशुद्धियां होण, जदों सुनियार अशुद्ध सोने नूं कुठाली च पांदा है, वो सोना तेजी नाल चक्कर कटदा है कुठाली च। पर जदों अग सोने की मैल नूं साड़ के शुद्ध कर दिंदी है सोने नूं, उदों सोना एक थां जाके फिर टिक जांदा है, फिर नहीं घुमदा। मन भटकदा ही उन्ना चिर तक है जिन्ना चिर मैला है, विकारां दीयां अशुद्धियां ने। गुरु शब्द की अग जदों इहदे विकारां दी मैल साड़ के खत्म कर दिंदी है, मन शुद्ध हो जाता है, उत्थे ही टिक जाता है। गुरबाणी दे वचन ने ज्यों कनको कोठारी चरियो, कनक आखदे ने सोने नूं, जिवें सोना कुठाली च पाया जाता है, ज्यों कनको कोठारी चरियो कबरों होत फिरो। वो भटकदा फिरदा है, चक्कर कटदा है। जब ते शुद्ध पे हैं बारे, जदों 12 बन्नियां दा शुद्ध हो जाता है, जदों 24 कैरेट दा हो जाता है, जब ते शुद्ध पे हैं बारे, तब ते थान थिरो, फिर एक थां ते आके टिक जाता है। जदों मन शुद्ध हो जाए उदों टिकदा है। अदरका टिकिया बैठा, चंचल बिरती वाला सी।
कदी बाहर दी दुनिया देखी सी, दौड़ भज की, आ भी फड़ लवां, आ भी जोड़ लवां, आ भी ले आवां, पर अंदर दा पता नहीं की खजाना मिल गया। बाहर दी दुनिया दे मोह छुट गए। जिन्हों हीरा मिल जाए वो पत्थर क्यों इकट्ठे करेगा? हीरा हाथ चढ़े निर्मोलक, छूट गई संसारी, छड्डन दी लोड़ नहीं पई, छुट गई। सवेर हुई, दिन चढ़िया, अधरका दुकान ते आया, सालसराय जोरी ने पुछ लिया, अधरकिया की होया तेनू? आज बड़ा मुंह नेरे उठ के बैठा सी, चंचल बिरती वाला, दौड़ भज करने वाला बड़ा टिकिया बैठा सी, की गल होगी? तेरा जीवन इना बदल के मैं गया, एडी तब्दीली? वो अधरका कहने लगा, मालिक मैनू पता नहीं की होया है। कल एक फकीर कोल गया सी, उन्हें सिर ते हाथ रखिया, उस बाद पता नहीं मैनू की हो गया। कहने अच्छा किथे तेरा वो फकीर? मैं भी जाके उस फकीर नू मिला, जिन्ना तेरे ते चेहरे ते अज जलाल है, नूर है, मैं चाहना मैनू भी एक खुशी है, आनंद मिल जाए। अज बड़ा आनंदित लग रहा तू, ये अंदर दी खुशी, अंदर दा चाओ मैं भी लेना चाहना, दस किथे हो फकीर? अधरका सालसराय नू लैके गया गुरु नानक पातशाह जी दे कोल। गुरु नानक पातशाह अहल बैठे सन, सालसराय नू देखिया, नेत्र मुंद ले, अखां बंद करके बह गए। कोई कौतक वरताना होएगा? सालसराय नेड़े आया, उहदे मन विच इक्को गल है कि अधरके दे सिर ते हथ रखिया सी, ते सिर ते हथ रखण दा मतलब की है? सिर विच हुंदी है मत। जदों गुरु ज्ञान दिंदा है उदों मत नूं बदल दिंदा है। मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, ते मत्थे विच हुंदी है मत। जदों गुरु मत दिंदा है, जदों गुरमत इस मत विच पाउंदा है, उदों सारे विकार खत्म हो जाते हैं। भैड़ी मत दौड़ जाती है, गुरु की मत आ जाती है। कर हुक्म मत हथ धर, विचों मार कड्डियां बुराइयां। गुरु मत्थे विच गुरमत भर दिंदा है, मनमत नूं बाहर कढ दिंदा है, उदों गुरमत आ जाती है। वो है सिर ते हथ रखना। इन्हें सोचा भी बाबा सिर ते हथ रखेगा मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुते लोग इसे करके बाबियां को सिर ते हथ रखांदे ने, शायद साडी जिंदगी बदल जाए। पर गुरु दा हथ है ज्ञान दा, जिहड़ा मत्थे दी मत विचों अज्ञानता कट के ज्ञान भरदा है, गुरमत दे दिंदा है। सालसराय जोरी ने गुरु नानक पातशाह दे चरणों च जाके सिर झुकाया, मत्था टेकिया। गुरु नानक पातशाह अहल बैठे ने, नेत्र बंद ने। इन्हें अपना सिर गुरु नानक साहब के चरणों च झुकाई रखिया कि हुणे गुरु नानक साहब सिर ते हथ रखणगे, हुणे फकीर मेरे सिर ते भी हथ रखेगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। 1 मिनट लंघ गया, 2 मिनट लंघ गए, गुरु नानक साहब ने हथ नहीं रखिया, मुस्कुराते रहे। इन्हें क्या बाबा हुण हथ रखू, घड़ी नूं हथ रखू, सतगुरु ने हथ नहीं रखिया। इन्हें सोचा कि बाबा सुता ते नहीं पिया। इन्हें हाथ नाल थोड़ा गुरु नानक साहब के मोढे नूं छोया, हलूणिया भी शायद जाग जाए बाबा, मेरे ते सिर ते हथ रख दे, इनू पता नहीं शायद मैं मत्था टेक रहा। गुरु नानक साहब के गोडे नूं छोया, थोड़ा हलूणिया। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पे, कहन लगे सालसराय की होया, क्यों हलूणा दे जा रहे हैं, क्यों सानू तंग कर रहे हैं? सालसराय ने मुंह तां चुक के देखिया, हाथ जोड़ के आखदा, बाबा मैं सुनिया तू मेरे नौकर दे सिर ते हथ रखिया, उसदी जिंदगी बदल गई। मैं भी ते मत्था टेकिया तेरे कदमां च, मेरे सिर ते हथ क्यों नहीं रखदा? मेरे सिर ते भी हथ रख, मेरी भी जिंदगी बदल दे। मेरे नौकर ते कृपा कर दी, मैं मालिक हां और हीरियां दा व्यापारी हां, जौहरी हां। इत्थे मेरा नौकर सी, इहदे कोल की गरीबड़ा जिहा बच्चा जिहा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਆਂ ਇਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। किड्डा ही अमीर क्यों ना होवे, किड्डा ही बादशाह क्यों ना होवे, प्रसाद सदा हाथ ही अड के लेना पैंदा है, मंगना पैंदा है, पुकार करनी पैंदी है, जाचक बनना पैंदा है प्रसाद लैण वास्ते।
सालसराए तू मालिक बन के आया, किवें कृपा मिल जाए। तू सोचदा वो नौकर है, नहीं, आत्मक जीवन में तेरे तो किते अगे है। बारी तेरे को ज्यादा पत्थर होणगे, उस गरीब को पत्थर कोई नहीं तेरे वर्गा। तू चमकदे पत्थर इकट्ठे करी बैठे, पर जिहड़ा असली हीरा उन्होंने मिल गया ना, वो आत्मक अमीर हो गया। तेरे वर्गे किन्ने ही अमीर इहदी कीमत नहीं लगा सकते। सच जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाह ही पातशाह। जिन्होंने मालक सिफत सलाह की दात दे दिंदा है, वो तो पातशाहां दा भी पातशाह हो जाता है। कौन उस रब्बी प्यारे दा मुल पा सकता है? जिहदे कोल बेशकीमती ही है, वो मालक भी तो बेशकीमती होया ना। अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए, अमुल भंडार। जिहदे कोल अमुल गुणा का भंडार आ गया, वो व्यापारी भी तो अमुल हो गए ना। बाहर की गरीबी अमीरी तय करती है माया। जिहदे कोल जिन्ने रुपए उन्ना गरीब उन्ना अमीर। रुपए दसते ने कितना अमीर, जिहदे कोल 100 ने घट अमीर, जिहदे कोल 1000 ने ज्यादा अमीर। अंदर दी अमीरी तय करती है गुणा के उपर, जिहदे कोल जिन्ने गुण उन्ना अमीर। बाहर की माया खोई जा सकती, लुटी जा सकती है, पर गुण कदी नहीं खोए जा सकते। वो सदीब हुंदे ने। रब्बी गुण कदी मिटते नहीं। ना कि उन्होंने चोर लुट के चोरी करके ले जा सके, ना उन्होंने अग साड़ सके, ना हवा उड़ा सके। अगन नहीं दहै पवन नहीं मगन, तस्कर नेड़ ना आवे। राम नाम धन कर संचोनी, सो धन कतही ना जावे। पूछो केड़ा धन है जी जिहड़ा कदी नहीं जाता? कहन लगे हमरा धन माधो गोविंद धरणी तर, यह सार धन कही है। जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज ना लही है। वो सुख राज भाग विच भी नहीं, जिहड़ा प्रीतम तेरी सेवा तेरे नाम दे विच है। सालसराए तू सोचदा मैं बाहरों अमीर हाँ, गरीब है, पर इहदी आत्मा च झाती मार के देख, तू कंगाल है, इहदे वर्गा पातशाह कोई नहीं होना। ये तेरे तो किते अगे है। आ जिहड़ा तेरा हंकार है ना, ये दात नहीं लैण दिंदा। पहला अपने नौकर नूं मत्था टेक, इहदे अगे मत्था टेक के देख, सिर झुका के देख, एक किड्डी रहमत नाल भरिया होया है, तेरा हंकार टुटे। सालसराय ने जदों अदरके नूं नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, हंकार नूं सट वजी। मन्ना सचमुच इत्थे गल रुपयां दी नहीं हुंदी, आत्मक जीवन दी हुंदी है। जदों आत्मक गुण पैदा हो जाण, उदों मनुख सचमुच बड़ा महान हो जाता है। अंदर दी गुणा दी वो कीमती दौलत है, वो कीमती खजाना है गुणा दा, जिहड़ा मनुख नूं अमीर कर दिंदा है। दुनियावी धन दौलत इकट्ठे हो जाते ने, चले जाते ने, गुण सदीब ने। सतगुरु पातशाह दे बचन, जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हे मेरे प्रीतम, जिहड़ा तेरी सिफत सलाह नूं गाउंदा है ते सुणदा है, हुण तिन कै सद बलिहारे जाऊं, मैं ओहदे तो भी सदा बलिहार हां। गुरु नानक पातशाह कहण लगे, सालसराए इन्ने गुण गाए ने, इहदे तो बलिहार जा, ये तेरे तो किते अगे है। रब्बी गुणा वाला अमीर हुंदा इस धरती ते। सतगुरु पातशाह ने बचन किया, कहण लगे, एक वो है जिनके पल्ले धन वसै, तिनका नाम फकीर। उत्थे फकीर का अर्थ है कंगला, गरीब। जिहदे कोल सिर्फ धन है दुनियावी, वो फकीर, वो कंगला, वो गरीब है। जिनके हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। जिन्हां दे हृदय च प्रभु तू वस जाना है, वो गुणां दे भंडारे हो जाते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਗਾਵੇਂ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। 84 ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ 33 ਕੋਟ ਮੁਨ ਜਨ, ਸਭ ਚਾਹੇ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵ, 84 ਸਿੱਧ, अनेक बुद्धिमान सियाने लोग, 33 करोड़ देवी देवते, अनेका मुनि, अनेका भगत, सारे चाहते ने गुर प्रसाद को विरला पावे। हाँ, गुरु की कृपा नाल कोई विरला इस दात नूं हासिल करता है। जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ, जिन्हां दे मत्थे ते तुरों रब दा प्यार लिखिया होवे, जिन्हां दे मस्तक विच रब दा प्रेम होवे, वो नाम नूं हासिल करता है। आखिरी वचन, शरणागत प्रतिपाल कर स्वामी, जो तुम देहो सोई हूं पाऊं। हे मेरे मालक, मैं तेरी शरण विच हाँ,
तू शरण विच रखण वाला पालन वाला है। जो तुम देहो सोई हो पाओ, जो तू दात दिना उही असी प्राप्त करते हाँ। दीन दयाल कृपा कर दी जय नानक, हर सिमरन का है चाओ। जे तू आप दात दिना फिर हे दीना उपर तरस खाण वाले प्रीतम, मेरे ते भी कृपा करके मैनू नाम दी दात दियो। मेरे अंदर नाम दा चाओ है, मैं भी प्रभु तेरी याद विच जुड़ना चाहता हाँ। सतगुरु कृपा करन असीं भी ये चाओ पैदा कर लीए कि सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभ देखण का चाओ साडे ते कृपा कर दिओ। असीं भी नाम नाल जुड़ जीवन सफल कर सकीए। इलोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले होइयां भुल्लां खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।